Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a more video, and this video is basically going to talk about a very important concept of mistake. What do you mean by the term mistake? See, again I am again repeating, contract करने के लिए सबसे important one of the essential ingredient is free consent. एंड फ्री कंसेंट कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 14. फ्री कंसेंट कब होगा? जब वहाँ पे कोऑर्शन ना हो, सेक्शन 15. जब वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, सेक्शन 16. जब वहाँ पे फ्रॉड ना हो, सेक्शन 17. जब वहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, सेक्शन 18. एंड जब वहाँ पे मिस्टेक ना हो, सेक्शन I'll discuss in this video. So today we're going to discuss about mistake. ये हमारी previous videos में already covered है. अगर आपने नहीं देखा तो I would request you to go through the earlier videos. Now what do you mean by mistake? Mistake when there is no consensus ad item. No consensus ad item has been defined under section 13. Consensus ad item का मतलब होता है meeting of mind. Meeting of mind. Or no consensus at item means no meeting of mind. The case is Raffle versus Wickelhaus. इस केस में क्या हुआ था? सेलर एंड बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था with regard to shipping of or selling cargo of cotton, right? अब ये कैसे शिप होने वाला था? थ्रू अ शिप कॉल्ड पियरलेस फ्रॉम बॉम्बे. ये शिप का नाम है और ये एक्चुअली दो शिप्स हैं. देयर आर टू शिप्स बाय द सेम नेम. वन सेल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अदर सेल्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. Now buyer is thinking that he gonna receive the goods through the ship called Peerless from Bombay that is sailing in the month of October. And seller को दिमाग में ये था that he gonna sell the goods through Peerless from Bombay which is sailing in the month of December. तो बायर के दिमाग में अक्टूबर वाली शिप थी, सेलर के दिमाग में दिसंबर वाली शिप थी. सो देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड. जब कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों पार्टीज की देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस. Contract cannot take place. Contract has to be avoided. Contract को avoid करना पड़ेगा because there is no meeting of mind. ठीक है? This has been defined under section 30. Bilateral mistake section 20 डिफाइन करता है bilateral mistake को. Suppose A ने अपना horse sell करना है B को and A is not aware that this horse is already dead and B is also not aware that this horse is dead. दोनों को ही नहीं पता कि ये horse तो exist ही नहीं करता. तो इस केस में the mistake with regard to the subject matter with regard to the subject matter is bilateral mistake. That is दोनों पार्टी को गलत फहमी है, and the contract is void. So this is bilateral mistake जहाँ दोनों parties को पता ही नहीं है with regard to subject matter. Now when mistake is of one party, section 22, only mistake of one party. Ayakam Angahar Singh versus Union of India. That is very important case. If you are appearing for BLLB exam, I want to see this case in your answer scripts. This is a very important case. इसमें क्या हुआ था? Fishing rights were auctioned. Fishing rights were auctioned for a period of 3 years. मतलब एक पार्टी को जो भी highest bidder होगा उसको fishing rights मिलेंगे for a period of 3 years. There was some Mr. X या फिर आप plaintiff बोल सकते हो. He was the highest bidder with rupees 40,000. 40,000 was the highest bidding price, and plaintiff had won this auction with his highest bid of rupees 40,000. Now ये जो fishing right थी, Mr. X
अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में उनको पता चला ये जो 40,000 है ये पर ईयर का प्राइस है, वेरास मिस्टर एक्स को लगा ये जो 40,000 है ये एक ही बार में देना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए 40,000 है, बट नहीं, एक्चुअल में क्या था, इट वाज 40,000 इंटू 3 इयर्स, दैट इज इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा 3 साल के लिए। बट उसको लगा कि मुझे तो सिर्फ 40,000 ही देना पड़ेगा, तो ये मिस्टेक किसकी थी? ये मिस्टर एक्स की या प्लेंटिफ की मिस्टेक थी, वन पार्टी की मिस्टेक थी। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो ये मिस्टेक किसकी थी? वन पार्टी की मिस्टेक थी। सो दिस व्हेन द मिस्टेक इज ऑफ ओनली वन पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। Contract cannot be avoided. Contract has to be enforced and he is bound by the contract. उनको 40,000 3 साल के लिए, ईच ईयर के लिए 40,000 देना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, उनको देना पड़ेगा। He is bound to do that, right? So this is mistake of one party. Now the last important point, mistake of law section 21. देखिए, अगर आप ये एक्सक्यूज करोगे यू डोंट नो द लॉ ऑफ द लैंड, देन इट इज योर मिस्टेक। कोई भी पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको लॉ नहीं पता। एग्जाम्पल, ए ने 2013 में लोन लिया था ऑफ ₹1000 फ्रॉम बी एंड ये लोन अमाउंट था फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज 2014 में ए ने ये लोन रिटर्न करना था बी को। अब बी ने 2014 में अप्रोच किया ए को एंड ही सेड नो आई डोंट हैव मनी, आई कैन नॉट गिव इट टू यू। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। जिस दिन उसने नो बोला उसी दिन ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। मतलब बी केस फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट। कॉज ऑफ एक्शन से 3 इयर्स तक कभी भी बी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। बी 3 साल के अंदर फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन कभी भी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है, राइट? अब इन दोनों पार्टीज को इन द ईयर 2015 लगा दैट दिस डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अब ये कॉज ऑफ एक्शन फॉर एग्जांपल 2014 में अराइज हुआ, तो 3 साल कितना होता है? 4 + 3 2017 तक बी कभी भी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो ये डेट बार्ड बाय लिमिटेशन कब होगा? 2017 से ये वाला जो डेट है, डेट ऑफ ₹1000 विल बी बार्ड। दैट मीन्स तब 2017 के बाद बी ए के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अब 2015 में दोनों को लगा कि ये डेट तो बार्ड बाय लिमिटेशन है। इन दोनों को लॉ नहीं पता था। ये दोनों सोच रहे 2015 में कि बी सोचता है कि मैं तो केस फाइल कर ही नहीं सकता ए के ऊपर। तो ए ने क्या किया, 2015 में ₹500 रिटर्न कर दिया कि भाई ये तो मेरे ऊपर केस नहीं फाइल कर सकता, चलो इसको थोड़ा बहुत पैसा रिटर्न कर देते हैं, मेरे ऊपर तो केस फाइल नहीं कर सकता, राइट? अब ये 500 से ही बी को खुश रहना पड़ेगा। अगर बी ने ये 500 ले लिया, बाद में बी कैन नॉट क्लेम द रिमेनिंग 500 फ्रॉम ए, स्टेटिंग दैट बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ। बाद में ये बी नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ को तो पता ही नहीं था, मेरा तो डेट 2017 में बार्ड होने वाला था, मैंने तो सोचा 2015 में बार्ड हो गया। बी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं लॉ ऑफ लैंड नहीं जानता। अब बी हैज टू बी हैप्पी विद दिस 500। बी नाउ कैन नॉट क्लेम द रेस्ट 500। So ignorance of law is no excuse. हर इंसान, if you are 18 and above, you should be aware of the law, right? So this was all about mistake. I hope you liked this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.